Assalamu alaikum and a very good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all at this webinar titled Economic Recovery of Pakistan Post-Elections 2024, organized by the Center for Law and Security. I am Research Associate Asfar Yaqub. Pakistan's economic woes are deepening as political uncertainty, unprecedented inflation, rising public debt, and prices of gas and electricity loom over the country. The ongoing economic challenges are likely to have disastrous impacts on Pakistan's national security. The incoming coalition government will have to take drastic steps to meet these challenges and at the same time coping with the demands of the IMF. To have a healthy discussion, we have two eminent scholars with us, Dr. Shujat Farooq Sahab from Pakistan Institute of Development Economics and Dr. Usman Chohan Sahab from the Center for Aerospace and Security Studies. We are also joined by Mr. Rahman Azhar, Executive Director, Center for Law and Security. Sir, I'll begin the discussion from Dr. Usman Chohan sir. Sir, what should be the government's initial priority to provide ease for the inflation hit masses? Does this election put us in a better position to talk with the IMF? Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for having me. Your question is very pertinent. So, what should the next government do as its primary focus um, with respect to the inflation hit economy? Well, the answer is that it should curb inflation. And it's a tricky business. And the second part of your question was that are we in a better position to discuss with the IMF? No, we are not. The reason is because the discussions with the IMF require a broad consensus in society so that everybody is on the same page, so that the difficult reforms that are stipulated in standby agreements or other engagements are undertaken. If you have a coalition government, then you have many different players within the same system, and there's two parts to that. One, they will have different values and different agendas within the same coalition, and therefore you won't be able to execute difficult decisions. For example, privatization, one party may be pro and one might be against and might throw a wrench in the business. And the second is that blame shifting tends to be a lot stronger when there's a coalition, because you'll say, that you were very sincere, but these other people in your coalition, wow, they really messed things up. And so blame shifting becomes much easier in a coalition system. So that makes reforms harder. It also makes discussions with the IMF more difficult. That was the second part of your question. The first part is the priority to reduce inflation. There's two parts to that. One is the domestic element, and the second is the global element. As far as the global economy goes, my personal view, it's just a personal view, is that the global economy is likely to come into recession, major parts of it at least this year and early next year. And that means that demand will slow down for key things such as commodities, and that'll probably ease things up. But the downside of having a global recession is that your exports suffer, your remittances suffer. So it's a double-edged sword. But insofar as inflation is concerned, it's probably better that things cool off in the world, at least to some extent. And then there's the domestic part of it. So, as my dear colleague Shujat Saab and his institution have done excellent work, the governmental regime of regulations and pricing controls creates a lot of distortions, which just makes things worse for the consumer. And that's a big part of inflation. So, if a coalition government can come and work on streamlining domestic prices insofar as domestic inputs are concerned, I think that would be a huge step. And again, the same thing might be a problem where the coalition, there's vested interests in it that damage any incentives or any hard work to be done to remove distortions within the domestic economy. Right. Thank you. But Usman Sahab, we've already had coalition governments in the past as well. I think post 2002, I think 96 was the last time when we had a government who had like simple majority in parliament. Other than that, we've had coalition governments. So फिर भी आपको क्यों लगता है कि this time coalition government will be much more in trouble and it will be harder for them to negotiate?
I wouldn't say that it'd be much more in trouble. I would say that they've always been in trouble, the governments. And अगर आप देखें तो माजी में भी चूंकि कोalition governments हुई थी, तो हमने कोई ख़ास ठोस इकदामात भी नहीं उठाए थे इसी वजह से। और चूंकि दुनिया के हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और हम ज़्यादा मकरूज़ हो चुके हैं, तो अब वही वाला निज़ाम चलाना मुनासिब नहीं होगा मेरे हिसाब से। राइट। शुजात साहब, व्हाट इज योर टेक? इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? डू यू सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और या फिर आपको लगता है कि द रोड इज बम्पी, थोड़ा मुश्किल होगा आगे आने वाली कोई जो भी गवर्नमेंट आती है? सब मेरे ख्याल से रोड बम्पी भी शायद बहुत माइनर वर्ड है। अगर आप पिछले 20 सबसे पहले आप पिछले 20 साल को देखें सर, बल्कि 40 साल को देखें, तो जो आपकी जो इकोनॉमिक के बैकबोन इंडिकेटर्स हैं, हम उसमें नीचे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग टू जीडीपी है, तो आपकी सेविंग नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी देखें, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिविटी हमारी विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही हैं, और कीपिंग इन व्यू हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। जो इकोनॉमिक की बेस है हमारी इंडस्ट्री, वो श्रिंक हो रही है, वो जॉब क्रिएट नहीं कर रही है, और हम एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज में हैं, जहाँ पे आपके पास यूथ है, बल्क यूथ है, और वो अनएम्प्लॉयड है, या उसके पास वो स्किल्स नहीं है। तो देखिए, बम्पी तो उस वक्त होता है जो मैं समझता हूँ सर, कि हमारी इकोनॉमी विद पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप देखें, ये बड़ी डिपेंडेंट हो गई है एक्सटर्नल ड्रिवन सिचुएशन पे, कि 9/11 आता है तो उसके बाद हमें कुछ कुशन मिलता है और हम ग्रो करते हैं। जो हमारी इंडिजिनियस बेस है, वो अनफॉर्चुनेटली वो डिप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप सर देखें, सबसे पहली चीज है कि आपके पास इस वक्त कोई भी आईएमएफ के अलावा ऑप्शन नहीं है। आप माने या ना माने, आपने हाँ। आईएमएफ के पास जाना ही जाना है। और आपको और लग रहा देखिए, है हम अप्रैल जी में जो है वो कितने जी, लंबे प्रोग्राम के लिए आपको लगता है हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं? सर देखिए, 24 तो हम इस वक्त तक कर चुके हैं। जो लास्ट जो है ये स्टैंड बाई प्रोग्राम था जी, फॉर 9-10 मंथ जो के अप्रैल में इलेक्शन। कंक्लूड हो रहा है। जी, और मोस्टली देखिए, आप आईएमएफ के पास आप 3 साल के लिए जाते हैं, ठीक है ना हम्म, जी। और जाहिर है वो 3 साल के साथ आपको जो बहुत से बायलेटरल लोन्स हैं, क्योंकि जो आपका चाइना है, यूएई है, वो भी देख रहे होते हैं कि अच्छा आईएमएफ आपके साथ साइन करता है या नहीं करता। लेकिन जी, उसमें सर देखिए, दो प्रॉब्लम्स है जो मुझे फील हो रहे हैं। एक है कि हाँ, जब भी देखें आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि जी रेस्ट करें। वो आपको कहेगा और टैक्स लगा दें, वो कहेगा कि जी तो एक जब भी आप आईएमएफ के पास जाते हैं, तो जो उस्मान भाई कह रहे थे, एक तो दुनिया में रिसेशन है, डेफिनेटली आईएमएफ के पास जाने से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। आपको कुछ मेजर्स पैरेलली ऐसे लेने हैं कि जिससे आप सस्टेनेबल बेसिस पे आईएमएफ से निकलें। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो कि आप इलेक्शन की तरफ कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, तो उसका भी विजन होता है सिर्फ 3 साल का। इसलिए हम्म, देखिए, जब भी गवर्नमेंट एक आईएमएफ के आती है, वो आईएमएफ के पास जाती है, और उसकी कोशिश होती है कि वो 3 साल के एंड पे, उसने एंड पे बहुत सी सब्सिडीज देनी होती हैं, अच्छा, अपने वोटर्स को कमिट किया होता है, इसलिए वो कभी भी लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाती। तो मुझे सबसे बड़ा सर क्राइसिस ये नजर आ रहा है जी, कि इस वक्त हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि हम वो सब्सिडीज जो इस वक्त हमने अभी रिसेंटली मैनिफेस्टोज में हाँ। भी देखा, और मैंने उसको इवेल्युएट किया है, कि इन पार्टीज के मैनिफेस्टो को कमिट करने के लिए तो आपको शायद ये बजट डबल करना पड़े, लेकिन कोई पार्टी आपको ये नहीं बता पा रही कि ये पैसा कहाँ से आएगा। सो अच्छा, इसमें मैं अल्टीमेटली, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज जो उस्मान साहब ने पहले मेंशन की, वो इकोनॉमिक विजन की बात है कि इकोनॉमिक विजन किसका चलेगा। और मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों से जब बात होती है, दो बड़े कोalition पार्टनर्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो आए, एक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले। पीपल्स पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो है वो ज्यादा रिलाय करना चाहती है, वो उस तरह से प्रो प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है, पीएमएलएन प्रो प्राइवेटाइजेशन है। ये एक प्राइवेटाइजेशन का एक इशू, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडे का भी इशू है। तो उस्मान साहब, हाउ डू यू थिंक दिस थिंग्स विल वर्क आउट? इसमें क्या ये एक जो वो स्ट्रगल रहेगी, पॉलिटिकल एजेंडा बनता रहेगा? एंड हाउ डू यू सी दीज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनकी हम बात करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो मेरे हिसाब से इस हाली दौर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिगर नहीं है। कोalition जो इंतज़ाम होता है उसमें लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात
डालते रहते हैं एक दूसरे से, मतलब खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते। कहते हैं कि हमारी तो नीयत ठीक थी, लेकिन ये बाकी जो इसमें कोalition में है ये बहुत ख़राब लोग हैं। और दूसरी बात ये कि जिन चीज़ों के लिए हमें मतलब द नेचर ऑफ द रिफॉर्म्स वो इतना गहरा है कि आपने किसी तरह आवाम को कहना है कि वो सब्र करे और बर्दाश्त करे, और सब मिल के अच्छा। एक दिन आगे जो है इस कूजे के दूसरी जानिब रोशनी है, वो उस तरह से लोगों की हौसला अफजाई करना। इसके लिए आपको एतमाद में लेना है सारी कौम को। वो एतमाद मेरे हिसाब से शायद इस वक्त नहीं है जो इस अच्छा, कोalition में है। एतमाद की जहां पर आपने बात की, एक ये जो चीज कही जा रही थी कि वंस द इलेक्शन फेज इज ओवर, तो उस वक्त कोई गवर्नमेंट जो है वो आएगी, और स्पेशली जो हमारे एफडीआई के मामलात है और हमारे जो कर्जों के रोल ओवर होने के मामलात हैं, आपको उसमें कुछ लगता है हमारे लिए कोई आसानी हो जाएगी वंस द गवर्नमेंट इज इन प्लेस? Perhaps on the rollover side, but the rollover is based on the state to state relationship, which is positive. So these are bilateral partners who are not thinking of the government who is in power per se. They're thinking Qatar, Pakistan, Saudi, Pakistan, China, Pakistan. That's much bigger than any political party. And so they have a stake in Pakistan. So for that reason, they don't mind rolling over the debt. It's not a big deal for them. But insofar as getting bigger things done, and having the political agency in that, which is to say that having the politicians as the agents or the leadership, that is a lot harder to do. And so I don't see relief on that front. And as you well understand, 70 billion over the next 3 years is due, out of which 24 billion is expected to come due this year. How much of that can be rolled over? Only a portion. So there is something that has to be paid अच्छा, back. ठीक है। अब शुजा साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये हमारे जो दो बड़े इश्यूज हैं, एक तो प्राइमरीली तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, क्योंकि आपने कहा आईएमएफ के पास जब भी हम जाते हैं तो आईएमएफ कहता है कि आप पहले अपनी इकोनॉमी का जो ढांचा है उसको ठीक करें। सो वो ढांचा जब ठीक करना होता है उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, उसके लिए आपको सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लोगों को नौकरियों से फारिग करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। तो डू यू थिंक आने वाली गवर्नमेंट जो है उस पोजीशन में होगी? सर मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में जो मेरी फीलिंग है कि इवन 2/3 मेजॉरिटी भी किसी की होगी तो तब भी शायद वो विल पावर नहीं है पॉलिटिकल इस वक्त जो एलिट है, ठीक है, कि वो उस तरह के सख्त डिसीजन ले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में आप देखें तो वो पॉपुलिज्म की तरफ जा रही है रादर देन रिफॉर्म्स। आपके मिनिस्टर्स का एटीट्यूड क्या है? यानी आपका जो एमएनए बनता है उसका एटीट्यूड है मुझे मिनिस्टर बनना है, जो मिनिस्टर बनता है वो कहता है मुझे नौकरी देनी है। आपका जो 90% इस वक्त बजट है वो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल पे चल रहा है कि आपने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने। आप इंडिया को देखें तो उसने जो आज उसकी आईटी एक्सपोर्ट है वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। लेकिन हम ये जो आज पूरा साउथ पंजाब और लाहौर से स्टार्ट करें और कराची तक जो स्मॉग देख रहे हैं, ये आपके सर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट है। अभी तक आपको सीरियस एफर्ट नहीं मिली है। सीरियस एफर्ट के लिए वो बड़ी मेजर सर्जरी और मेजर रिफॉर्म्स चाहिए जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, कि उसमें आपने सबसे पहले तो आप 15 मिनिस्टर्स पे कैबिनेट को लेके आए, एफिशिएंट गवर्नमेंट की तरफ लेके आए, फेडरल गवर्नमेंट के साइज को सिग्निफिकेंट कम करें। फॉर एग्जांपल आपको तो 18th अमेंडमेंट के बाद सर फेडरल गवर्नमेंट का साइज बढ़ा है, लेकिन आप देखें ना वो ब्यूरोक्रेट कुर्बानी देने को तैयार होगा, उनको सेक्रेटरीशिप चाहिए इसलिए और मिनिस्ट्रीज चाहिए। तो मुझे सर तो और जो उस्मान साहब ने इशारा किया है कि आपके मुल्क में तो सर 9 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाना चाहिए था, ये इलेक्शन नहीं खत्म हुआ आज तक, आप देख लें नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली आपको पता है कि इसकी जो कॉस्ट है इस गवर्नमेंट की रनिंग की वो बढ़ेगी, वो बहुत ह्यूज होगी। और शायद रिफॉर्म्स की तरफ कोई मुझे नहीं सर फील हो रहा है कि या हम मगर रिफॉर्म्स एक की तरफ जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें भी जरा मैं आपकी टेक चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अब ये भी थोड़ी सी एजम्पशन होगी कि जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं वो शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की उस तरह से उनकी ओनरशिप वहाँ पर जो है वो नहीं है, क्योंकि इदारे आ चुके हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स हैं जहाँ पर SIFC जैसा भी इदारा आ गया है। तो डू यू थिंक कि यहाँ आकर चाहे वो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग ना भी हो, लेकिन वो अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो लेने के लिए तैयार होगी? जो हमने 16 महीने में देखा जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बहुत सारे अनपॉपुलर डिसीजन लिए, हालांकि वो बहुत एक वीक ग्राउंड के ऊपर खड़ी थी। तो ये आने वाली गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसी तरह से डिसीजन लेगी? बिकॉज वो ये समझते हैं, शायद ये समझते होंगे उनकी ओनरशिप उस तरह से नहीं है।
सर देखें, सबसे पहले तो आपके पास एक कोई विजन तो हो ना। देखें, बहुत से अनपॉपुलर डिसीजन आप ले लेते हैं, लेकिन क्या वो एक आपकी लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म आपका विजन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना में एक ठीक है, एक सेंट्रिक गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग है और उसका एक विजन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हम्म। गारंटी है कि 2 साल के बाद हम किसी और लाइन की तरफ चल पड़े। SIFC की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखें, जिस तरह उस्मान साहब ने कहा है, ठीक है, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे, आपको $2, $2 बिलियन, $4 बिलियन को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपका मुल्क इस लेवल पे है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में आए और वो पैसा इन्वेस्ट करे कि उसको फील हो कि यहाँ पे मेरा पैसा सेफ है, सिक्योर है, और यहाँ की कोर्ट्स और यहाँ का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो वो नहीं है। नंबर 2 देखें, आप आज भी आप अपने इन्वेस्टर को ही मोबिलाइज नहीं कर पा रहे। इस मुल्क में पैसा पड़ा हुआ है और हमारे 20 इदारे हैं कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और देखें जिनने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट का फुटप्रिंट इकोनॉमी में इतना डीप है, NOCs हैं। आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको DC दफ्तर के 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2 साल आप चक्कर हाँ। लगाएंगे। ये सब का सब जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, और फिर अगेन देखे ना सर, वो जो आप एस्टेब्लिशमेंट जिनका कह रहे हैं कि जिन्होंने SIFC खड़ी की है, फ्रैंकली आप देखें, जो पहले आपके आर्मी चीफ थे उनका एक अपनी डॉक्ट्राइन थी, उससे पहले की अपनी डॉक्ट्राइन हम्म। थी। तो मेरे ख्याल से ये सब एक्सपेरिमेंट है। अगेन ये SIFC भी आपको कुछ बड़ा कुछ देने को तैयार नहीं है जब तक आपकी अपनी इंडिजिनियस थिंकिंग और इंडिजिनियस विल पावर बेहतर नहीं होगी। ये ठीक है। शायद एक टेम्पोरेरी आपको रिजल्ट दे देगी, नॉट सस्टेनेबल। उस्मान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन, देखिए हमारे जो विजन वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है उसका विजन क्या होता है, लेकिन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी की अब उस तरह से ओनरशिप लेने को जो है वो तैयार है, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द सिचुएशन इज, बिकॉज दे नो कि दे गोना गो ऑन, और वो चाहे जैसा भी डिसीजन हो वो लेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं विद द करंट, ये जो इलेक्शन सिनेरियो है, इस इलेक्शन सिनेरियो के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो क्या वो डिसीजन ले सकेगी जो कि पॉलिटिकल ना हो लेकिन मुल्क के लिए जो है वो बेहतर हो? Only if they enjoy the will of the people to be patient, because it's not pleasant. The way the Pakistani economy has been malformed and mal-shaped, everybody has a minor stake to extract things from themselves at all levels, from the top to the bottom. And this means that everybody is happy with the way things are. It's just that it's not sustainable. You see, so nobody would want to make any changes, but the problem is that now we have to make changes. And therefore, to make those changes, you need people to say, all right, there's something bigger at stake. But to have a stake in it, then people need to feel that they're participating, and then they will do it. ऐसे ही होता है बाकी ममालिक में भी. हम्म। राइट। और ये जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से, प्रोविंशियल रूल के हवाले से, इन 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 द स्कीम ऑफ थिंग्स, अब हमारे होने ये जा रहा है कि we'll have a very strong provincial government in KP which will be of PTI of course, then we'll have a strong government in Punjab जहाँ पे PMLN की मेजोरिटी है, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर जो है वो मेजोरिटी है, बलूचिस्तान एज एक्सपेक्टेड देयर द कोalition, बट ये डिफरेंट पार्टीज हैं और इन पार्टीज का अपना अपना विजन है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। सो आपको लगता है कि ये चीज, ये मॉडल जो है वो वर्कआउट करेगा? ऑल्दो वी हैव हैड दिस मॉडल बिफोर, लेकिन अब इस करंट सिनेरियो में दिस मॉडल विल वर्क? Absolutely not. And that's because the ambition of the 18th Amendment was never fully fulfilled. It was only halfway there. So when you did a devolution of the fiscal system, the devolution of fiscal power, you gave a lot of money to the provinces, but you did not give them the responsibility and accountability, and you did not take it all the way to the local government. The actual ambition was that if you have 100 plus districts, they should be the ones managing the public finances, not somewhere in the middle with provincial governments. And the problem with that is that the provinces are basically on ethnic lines now, which is a very bad sign. It was just like when the All Pakistan Awami League won two-thirds
double the popular vote. It's the same kind of situation, and you don't want to run a society on ethnic lines. Instead, you want all Pakistanis to feel like Pakistanis and work in terms of the revenue side on the fiscal and in terms of the expenditure that it's being spent, rather than it going at just the provincial level and then going also to the capital. So Lahore gets the majority of the Punjab's money, or Peshawar does, or Quetta does, or Karachi does. But you want to see a stronger Multan and Sialkot and Nawab Shah and so on, right? Or Mardan. You need to spread the thing across. So I'm actually a deep believer for a strong federation with a strong center, and you have the devolution all the way to the bottom. And for that, actually, if you can't do it with a political honesty, then you should just split up the provinces and you should have 12 provinces. And the reason is because your biggest province is now larger than Mexico. Punjab alone would be the 10th largest country in the world in terms of its population. But you see, Mexico has 22 states. The official name of Mexico is the United States of Mexico. So they have split it into 22 parts for a reason. And so if you have the 10th largest is one subnational unit, it is too large. So we have to think about federalism in a dispassionate way, थोड़ी गैर जानिबदारी से, ठंडे दिमाग से इस पे सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 12-13 सूबे चाहिए होंगे जिसमें कि ब्यूरोक्रेसीज ये ना हो कि हर एक में कोई 180 मिनिस्ट्रियां हों, 180 इदारे हों, बल्कि छोटी छोटी सरकारें हों जो कि आवाम की खातिर काम करें और छोटे 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 पैमाने पे ज्यादा काम करें। Right. शुजा साहब, लास्टली व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सूबों के अंदर अब और गवर्नमेंट्स आ रही हैं और वो बड़ी स्ट्रांग होंगी, बट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, तो आपके ख्याल में ये मॉडल जो है वो ठीक चलेगा, या चल सकता है कि जब तीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स हों और सूबों के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स हैं, स्पेंडिंग की, एटलीस्ट स्पेंडिंग के हद तक तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं? सर, वो उस्मान साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप देखिए 18th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि फेडरल बदमाश था और सूबे कमजोर थे। अब सूबे बदमाश हो गए और फेडरल कमजोर हो गई है, ठीक है। और वो वही है कि यानी आज तक किसी ने 18th अमेंडमेंट के बाद एनएफसी पे तो सारे बात करते हैं, पीएफसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और पीएफसी पे कोई विलिंग भी नहीं है, ठीक है। और आप देख लें कि जो डेलिबरेटली हमारे पास 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया और उसके बाद 2018-19 के आए, वो लूले लंगड़े थे, कोई भी पावर शेयरिंग करने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की अपनी एम्पायर्स खड़ी हैं। वो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लें और वो सिमिलरली आप देख लें, तो वो इसलिए उनको मुल्तान चाहिए, उनको यही पावर चाहिए। तो और वो आपको नजर भी आएगा कि देखें इस मुल्क में जनरल इलेक्शन हुआ है, तो ये इलेक्शन के अंदर जो कमिटमेंट हो रही थी एमएनए एमपीएस की, वो इस तरह फील हो रहा था कि जिस ये कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। अब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिसी पे, नेशनल पॉलिसी पे बात नहीं की है, इंटरनेशनल मंशूर पॉलिसी जो पे थे वो बात आप नहीं की देखें है, ना, ठीक है मेरा ख्याल है जी पीएमएलए ने जी 27 को जी दिया जी मंशूर, जी 9 जी डेज और 10 डेज बिफोर द जी इलेक्शन। जी और पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे ही कुछ 10-12 जी, दिन बड़ी पहले। पार्टीज के मंशूर जिसको कहते हैं, वो 10 से 11 दिन पहले इलेक्शन से पहले आए हैं। तो अगर कोई वेस्ट का बंदा इधर आके देखे तो उसको लगेगा कि ये लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, कि ट्रांसफार्मर दे देंगे, फलां इंटरेस्टिंगली चीज दे आपको देंगे। बताऊं, ये कई सो दफा जी जो है वो जी हम बात करते हैं कि मंशूर जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग होते हैं, उनमें जिस बंदे ने लिखा होता है उसने तो पढ़ा होता है, लेकिन उसके अलावा जी किसी और ने ये मंशूर पढ़ा भी नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए हमारे मुल्क का कल्चर ये है कि आप वो डिबेट, वो जो हम ये डिबेट अभी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी डिबेट चाहती नहीं है। हालांकि आप देखें वेस्ट में डेमोक्रेसी में मंशूर आते हैं, पार्टीज प्रेजेंट करती हैं, उसकी बेस पे वो इवेल्युएट करता है। यहाँ पे तो जलसा किया जाता है, लोग किराए पे लिए लिए जाते हैं, बिरयानी खिलाई जाती है और वहाँ पे वो नारे लगवाए बिल्कुल। जाते हैं। और वो सारे का सारा दूसरों के ऊपर ब्लेम गेमिंग और कीचड़ उछालने तक है। तो सो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं फील हो रहा है कि यानी ये डिफरेंट आपके जो और मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो। फॉर एग्जांपल आप देखें, जब आपको 2013-18 में भी ये इशू मिला कि जब पीटीआई केपी में थी, तो उसका मरकज के साथ कोई रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। और उससे पहले आप 2018 8 से 13 देख लें कि जब खुद जो सीएम शहबाज शरीफ था, वो स्ट्राइक जिसको कहते हैं, वो लोड शेडिंग के ऊपर मीनारे हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पे वो भी ला रहे मुजाहरे थे। कर रहे थे। तो मुझे सर ये वही फील हो रहा है कि सो अल्टीमेटली जब ये खींचातानी होगी, सो अल्टीमेटली अवाम के ऊपर और टैक्स लगेंगे और आपने किसी को वजारतें देनी है, किसी को खुश करना है, तो ये सारा यही गवर्नमेंट चक्कर स्पेंडिंग चल भी जो है वो बढ़ेगी। जी। असफल, सर, डॉक्टर उस्मान साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, ये रिसेंटली हमारे पास ये स्मगलिंग के खिलाफ कुछ
ऑपरेशंस भी हुए डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, और इसको खत्म करने के लिए होल्डर्स के ऊपर छापे वगैरह भी मारे गए। थोड़ा सा इसका असर पड़ता हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन अभी दोबारा से डॉलर ऊपर जाने लग गया सर। तो इसका परमानेंट करेंसी की डिवैल्यूएशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नई गवर्नमेंट को क्या अपनाना चाहिए? ये बड़ा गहरा सवाल आपने पूछा है। शुजात भाई भी इसकी बहुत अच्छी वजाहत कर सकेंगे। द ट्रूथ इज दैट द प्राइस ऑफ अ करेंसी is based on the supply and the demand of the currency. Now, the supply of the rupee continues to grow recklessly because the government borrows recklessly from the banks. आपको और मुझे वो नहीं दे सकते, लोन देना चाहते भी नहीं है, वो सरकार को ही देते हैं. So the government borrows and creates a supply of rupee in that sense. So there is a huge liability in the banking system, and then there is no demand abroad for the rupee, which is to say that Pakistan does not export enough that outsiders would want a demand for the rupee and in exchange give you the dollars. So if the supply demand is so warped, then the price of the commodity, in this case the rupee, will shrink catastrophically and dramatically. So you need to create two things. You need to first have a demand for rupee outside, which is to say you export enough that people will exchange for that. And second, you need to keep the supply down. Now, why does the government borrow so much? It borrows so much from the banking system to finance its needs, and its needs are not Pakistan's needs. They are their bureaucratic needs, the DMG's needs, the army's needs, all these other institutions' salaries needs and their protocols, and all of this Afsar Shahi's needs, which then you and I are paying for with a weaker rupee. And the problem is that a rupee is something that you and I both live by, but we cannot determine its price on our own. So whatever are these big decisions impact you and me. And therefore we are very very careful कि करेंसी को रोका जाए, थाम लिया जाए इसका गिराव. लेकिन आप ये स्पेकुलेटर्स वगैरह पे एक हद तक ज़बरदस्ती कर सकते हैं. आप ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दें, otherwise your currency won't be traded at all, therefore it won't have any price, right? And so it won't make sense. So managing the currency is a disaster in its own right. So create a demand for it and curtail the supply and the price will rise. सर मेरा ख्याल है हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं इसकी. was a very healthy discussion. Indeed, we thank our speakers, Dr. Shujat Farooq Saab, Dr. Thank Usman you. Chohan Saab for taking out the time. Thank you, sir. Thank you, Usman Saab. Thank you, Shujat Saab. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care, sir. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.